5, 22. 15 divided by 30. How many times? 2 times. Okay. 9 3s are 27. So here you write 27, then plus 22 2s are 44 by 50. Okay. So here we see that for one number is negative and the second number is positive, so plus minus minus हो जाएगा. Then 14 minus 7 is equal to 7, 3 minus 2 is equal to 1. ठीक है, and 44 is a greater than 27, so here positive sign रहेगा, then upon 30. check कर लेंगे, it is the simplest form. Yes, because 17 is a prime number, so here you write answer. Okay, clear है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट्स रुको सर. ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे. किसी को डाउट कोई सा भी? एक मिक्स फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. सो नेक्स्ट इज -2 राइट 1 by 3 प्लस 4 राइट 3 by 5. सर कुछ दिख ये नहीं हमारा रहा. क्वेश्चन हो गया. -2 1 by 3 प्लस 4 3 by 5. दिख रहा है बच्चे? So first of all, it is an improper fraction. Mixed fraction है, इसको first we convert to the improper fraction. So 3 2s are 6, 6 plus 1 is equal to -7 by 3. Then plus 4 5s are 20, 20 plus 3 is 23 by 5. ठीक है? Then again different number है denominator replace पे. So you take the LCM. So the LCM of 3 and 5 is 15. ठीक है, so here you write them 15. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है, सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. ठीक है, या सिंपल आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. 3 divided 15 how many times? 5 times. Then plus sign 23 as it is you write 5 divided 15 3 times. 7 5s are 35 and plus 3 3s are 9, 3 2s are 6 upon 15. ठीक है, अगेन प्लस माइनस नंबर है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 9 minus 5 is equal to 4. 6 minus 3 is equal to 3. 69 is greater than, because it is a positive and negative number. So here you write 34 in a positive form, then upon 15. So here you check them, this number is simplest form. Yes, it is a simplest form. So simply you write answer. ठीक है, चलो अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एडिशन क्या हो गया, देन वी टेक सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड में सिंपली बोला है फाइंड देम, यानी कि जो भी साइन आपको दिया है उस साइन का यूज करके आप सॉल्व कीजिए. सो फर्स्ट इज गिवन 7 by 24 minus 17 by 36. Okay, so here first of all we check them, denominator are different, so first we take the LCM. The LCM of 24 and 36
ठीक है, जल्दी से एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। 24 एंड 36, सो 2 से कैंसिल कर दें। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से कैंसिल करते हैं। 2 6 जा, 2 9 जा, फिर 2 से कैंसिल करते हैं। 2 3 जा 9 एज इट इज लिख लेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड कर लिए 1। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72. So that means the LCM of 24 and 36 is 72. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं। सो फर्स्ट हेयर वी राइट द डिनोमिनेटर प्लेस टू LCM नंबर। फिर first numerator is given 7. 24 divided by 72. So for 24 divided 72 is 3 times. Then minus sign 17 as it is you write. 36 divided by 72 is a 2 times. So here 3 7 ja 21 minus 17 to the 34 upon 70. Okay, 3 7 जा 21, 17 2 जा 34, फिर अगेन प्लस माइनस नंबर है, सो हेयर यू सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ हम। तो 34 ग्रेटर है एंड 24, 21 इज अ लेस। ठीक है, नंबर में। ठीक है, प्लस माइनस कर देते हैं। 4 minus 1 is equal to 3, and here 3 minus 2 is equal to 1 by 72. But 34 negative sign दिया है, so here you put them here negative sign. Okay, so your answer is minus 13 by 72. Okay, और कोई सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बच्चे आपको डाउट हो जिसमें? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ट्रिपल माइनस साइन दिया है। ठीक है, इट इज क्लियर दिस क्वेश्चन? Yes, सर एक और बार समझा दीजिए। Okay, ठीक है। First of all, we check them the denominator number. So denominator are different. So first we take the LCM. LCM हमने find किया, LCM is 72. So denominator place पे you take here 72. Numerator as it is you write and divide by LCM number to denominator. Denominator से इसको divide कर दो. So 24 के टेबल में 72 3 times में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, माइनस साइन, सो हियर यू राइट माइनस 17 as it is you write. 36 divided by 72 how many times? 2 times. Okay, 7 3 is 21, 30 17 2 is 34. ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस 13 by 72. ठीक है, चलो एक नेगेटिव का नंबर दिया है, इसमें 3 नेगेटिव साइन है। माइनस 6 by 13 minus inside bracket minus 7 by 15. So here first of all open the bracket, minus 6 by 13 as it is you write, then minus plus, sorry, minus minus plus. So here you write plus 7 by 15. Okay, then जल्दी से अगेन डिफरेंट नंबर है। ठीक है, और एक प्राइम नंबर है और एक नॉन प्राइम नंबर है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 3 जा 15 3 जा 45 की 5 कैरी 4, 15 1 जा 15 प्लस 4 is equal to 19, so it's 195. ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 6 मल्टीप्लाई 15 एंड 7 मल्टीप्लाई 13. ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बच्चे? नो सर। सिंपली इसको हम
ओ सर मल्टीप्लाई करते हैं हम। 15 6 90 नेगेटिव में, फिर देन 13 7 91 अपॉन 195। सो हेयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 91 सब्ट्रैक्ट 90 इज 1, ओके, अपॉन 190, ये आपका, ठीक है। तो ये हमने एडिशन के क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन इसमें और हैं, एक मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ओके। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट 9/2 मल्टीप्लाई -7/4, ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट्स में है, ठीक है। सो 9/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, -7/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट फॉर्म आप चेक करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म अप टू डाउन इसमें कैंसिल होते हैं, ध्यान रखना। अप टू डाउन, जैसे कि 2 डिवाइडेड 9 इज पॉसिबल, नो। 9 डिवाइडेड बाई 2 पॉसिबल, नो, ठीक है। तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा। सेम इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 4, नो। 4 डिवाइडेड बाई 7, नहीं, ठीक है। दोनों ही नंबर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद द नंबर इज डिवाइजल एनी नंबर, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जिससे 2 और 9 दोनों डिस्ट्रीब्यूट कैंसिल हो, नो, ठीक है, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 9 इज अ ऑड नंबर, ये एक साथ कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम इस 4 और 7 को भी चेक कर लेते हैं, तो 4 और 7 भी कोई अनदर नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे। देन उसके बाद आप क्रॉस में कैंसिल करके देखते हैं, ठीक है। सो 4 डिवाइडेड बाई 9 पॉसिबल है, नहीं। 9 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट। अनदर नंबर से, किसी कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, ठीक है। सेम इसी तरह आप किस में ले लेंगे, 2 और 7 को भी। सो बोथ प्राइम नंबर है, ओनली प्राइम नंबर इज डिविजल बाय इटसेल्फ या 1, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। तो जब इस तरह के नंबर आएंगे तो सिंपली यू राइट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, 9 multiply to -7, and denominator multiply to denominator. So 9 7 ja 63, as it is you write, plus minus minus 4 2 जा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं जल्दी से। मान लो अगर आप क्वेश्चन दे रहे हैं 15/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 6/14, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको अगर हम चेक करते हैं तो इट्स डिविजल बाय बोथ नंबर टू 5, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जा रहा है, तो आप इसको सिंपली 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, सो हियर वी राइट 3/2, ठीक है। देन अनदर साइड में देखते हैं, 6 एंड 14 किसी से कैंसिल हो रहा है, यस, बोथ इज कॉमन फॉर द टू टेबल, सो 2 3 जा एंड 2 7 जा, ठीक है, 3/7, ठीक है। अब ऐसे भी अप टू अप कैंसिल नहीं करना, आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए देखो अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन कैंसिल करना या क्रॉस में कैंसिल करते हैं, ठीक है, इसी को बस ध्यान रखना आप। सो 3 3 जा, अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, ठीक है, इस तरह, ठीक। और कोई क्वेश्चन इसमें आपको, कोई और क्वेश्चन? नो सर।
ओके ठीक है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, अगेन फाइंड द वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय 2/3। सो फर्स्ट नंबर एज इट इज यू राइट। ठीक है, जो भी पहला नंबर होगा एज इट इज यू राइट, एंड द सेकेंड नंबर यू चेंज टू द रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे, सो 2/3 इज चेंज इनटू 3/2। जैसे यू चेंज रेसिप्रोकल, सो इट्स डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो सिंपली अब देखो यहाँ अप टू डाउन कैंसिल हो रहा है, क्रॉस में कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो रेस्ट ऑफ -2 इंटू 3, और नीचे 1 1 है तो आप छोड़ दो, सो 3 2 जा 6, ये माइनस। ठीक है, इसी तरह अगर अपोजिट साइड में आपको दे दें, लाइक एग्जांपल -4/5 डिवाइडेड -3। ठीक है, तो जब इस तरह का नंबर होगा, अगेन फर्स्ट नंबर एज इट इज यू राइट, एंड द सेकेंड नंबर यू चेंज टू द रेसिप्रोकल। सो हियर यू राइट, हियर -3/1 है, तो जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/3। रेसिप्रोकल इज 1/3, बट माइनस में। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो हियर वी कैंसल देम। कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो एज इट इज यू राइट हियर। ठीक है, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सिंपली यू राइट देम। ठीक है, 4 1 जा 4, एंड 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ गया 4/15। ठीक है बच्चे, क्लियर? और कोई क्वेश्चन इसमें? No. एनी क्वेश्चन चिल्ड्रन? क्लियर है सबको? मनीष, इट इज सर क्लियर? एक और बार समझा दीजिए। कनेक्ट हो गए एक थे, और एक नंबर और बार देख लेते हैं, समझा दीजिए। एक और नंबर देख लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको नंबर दे रहा है -18/21 डिवाइडेड 6/7। So -18/21 एज इट इज यू राइट, और डिवाइड है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और 6/7 कन्वर्ट इनटू 7/6। ठीक है, कैंसिल कर दो इसको क्रॉस में। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। सो हियर यू राइट -3/3, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। सो हियर योर आंसर इज माइनस। ठीक है, इस तरह ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया बच्चे। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। ठीक है, तो चैप्टर 11 में हमारा क्या है? चैप्टर 11 इज पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, चैप्टर 11 आपका फर्स्ट पेरीमीटर्स एंड एरिया।
ठीक है, इस चैप्टर में हम पैरामीटर्स और एरिया पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट फिगर। लाइक एग्जांपल रेक्टेंगल शेप का, देन स्क्वायर शेप, ठीक है, देन ट्राइंगल, ठीक, देन सर्कल एंड देन एक और हमारा इसमें क्या है, पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए हम इसमें देखेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम में इस तरह आपको हाइट, के हाइट और इट्स कॉल्ड टू द बेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल में इज गिवन टू द फोर साइड 1 2 3 4, फोर साइड, स्क्वायर में भी फोर साइड है 1 2 3 4, ट्राइंगल थ्री साइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, सर्कल राउंड शेप का होता है, एंड द पैरेललोग्राम अगेन फोर साइड से मिलकर बना, ठीक है। अगर आपको यू फिल विद द फाइंड द पेरीमीटर, सो पेरीमीटर हेयर वी फाइंड द आउटर लाइन, ठीक है, पेरीमीटर में हम किसको फाइंड करते हैं, आउटर लाइन को, एंड सभी के आउटर लाइन, सर्कल के लिए पेरीमीटर दैट मींस सरकमफ्रेंस, सर्कल के लिए हम सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल के लिए हम सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं, ओके। और एरिया अगर आपको फाइंड करना होगा, ठीक है, सभी का एरिया जब हम फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल के लिए एरिया, या फिर आप ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल या फिर पैरेललोग्राम, जब भी वी फाइंड द एरिया मतलब ऑल पार्ट्स, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कितने एरिया को कवर कर रहा है, इट्स कॉल्ड टू द एरिया, ठीक है। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए, अगर हम यूज करते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ rectangle, so perimeter of rectangle that means 2 inside bracket length plus breadth, ठीक है, that means 2 times length and 2 times breadth को आप ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपली मल्टीप्लाई टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर पे हम जाते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, so perimeter of square that means sum of the all side, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, 4 into side, okay, because square each side are equal, okay। next area, area of square, so area of square a simple multiply to side into side, ठीक है, ये हो गया। then perimeter of triangle, perimeter of triangle सम ऑफ द ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में सिंपल हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में इस तरह आप, ये इसका हाइट होता है, हाइट को रिप्रेजेंट करता है, एंड द बेस, ठीक है, ये इसका बेस, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सिंपली यू मल्टीप्लाई टू बेस इनटू हाइट, सर्कल, सर्कल में हम आते हैं, ठीक है, तो सर्कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट
हेयर सेंटर, सेंटर जिसका यूज करके हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट्स रेडियस, ठीक है, इट्स रेडियस एंड द होल वन सर्कल के वन एंड से, सेंटर से होता हुआ अनदर एंड पे जब जो लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। सो इट इज अ डायमीटर एंड रिप्रेजेंट टू द डी, ठीक है। सो diameter is always twice of radius. Diameter is always twice of radius. Our radius is half of diameter. Radius is half of diameter. Then next, सर 2 मिनट रुको सर, मैंने नहीं करा। बच्चे मैं अभी फोटो भेज दूंगा, ठीक है। बच्चे मैं फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्या नाम है बच्चे ओके सर, आपका? लोहिया। What? अच्छा जीवेश, ओके बच्चे। बच्चे अभी मैं फोटो शेयर कर दूंगा ना, आप उससे देख के लिख लेना, ओके। चलो, circumference of सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस में, ठीक है, आपका इसमें सिर्फ सर्कमफ्रेंस दिया है। तो सर्कमफ्रेंस दैट मीन्स द हियर सपोज यू स्टार्ट एंड रन दिस साइड, ठीक है, जब आप कंप्लीट करते हो वन राउंड इज कॉल्ड टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो आपको सिंपली इसमें सर्कमफ्रेंस करने के लिए दिया है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस के लिए सिंपली हियर यू राइट 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। अब इसमें देखो ये जो वी, उल्टा वी करके ऐसे जो लाइन होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं पाई, ठीक है, इसको हम पाई प्रोनाउंस करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ इन पाई फ्रैक्शन फॉर्म यू राइट 22/7, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 22/7, और डेसिमल फॉर्म में यू राइट हियर 3.14, ठीक है। डेसिमल में इसे हम लिखते हैं 3.14, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस के लिए हो गया। फिर circumference of semicircle. So semicircle that means half of the circle, ठीक है। semicircle that means जैसे ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू इक्वली पार्ट्स, ठीक है। डायमीटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू इक्वली पार्ट्स। अगर इसी को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये वन पार्ट्स हो गया एंड अदर है वन पार्ट्स, ओके। तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सपोज यू फाइंड द सेमी सर्कल ऑफ circumference, so 2 पाई r अपॉन 2, ठीक है। और इसी को सिंपल वे में आप लिखते हो पाई आर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यू राइट हेयर सिंपली पाई आर, ओके। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई आर स्क्वायर से। और अगर आपको हाफ सर्कल का है, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। हाँ, ठीक है, जब भी आपको हाफ करना हो सिंपली आप उसको 2 से डिवाइड कर देना। हाफ मीन्स यानी कि इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूला आता है जो आगे एरिया
So area of path means pi r square minus pi r square. ठीक है, अब देखो ये आर में क्या डिफरेंस है. सपोज हियर यू मेक अ सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है, और इसी के अंदर एक और सर्कुलर शेप का, सपोज ये ग्राउंड है और ये उसमें क्राउड के बैठने के लिए सिटिंग पोजीशन. ये जो स्मॉल सर्कल है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिए रेडियस को, ठीक है, और बिगर सर्कल के रेडियस, ठीक है, बिगर सर्कल सपोज आपने ऐसे ले लिया, ठीक है, सो इट्स रिप्रेजेंट टू कैपिटल आर, इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. तो ये दो रेडियस तो क्लियर हो गया, बट हियर यू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, दैट मींस यू फाइंड हियर दिस साइड, ठीक है, इस साइड इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ पाथ, ठीक है. तो सिंपली यू सब्ट्रैक्ट देम अ ग्रेटर सर्कल एरिया टू स्मॉलर सर्कल एरिया, ठीक है, ठीक है बच्चे. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो चैप्टर 11 हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ही यूज होता है, ठीक है. पेरीमीटर्स एंड एरिया डिफरेंट शेप्स के लिए हमने यहाँ पढ़ेंगे. द फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप दिया है, देन सेकेंड एक्सरसाइज में ट्राइंगल एंड आपका पैरेललोग्राम दिया है, एंड द फोर्थ एक्सरसाइज में आपका सर्कल दिया है, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इज a length and breadth is a rectangular piece of the land is 500 and 300 respectively. Already is given, ठीक है, length of land, length of land is 500 meter, breadth of land is 300. Okay, and this is the rectangular shape because a different side. So first is given, find the area. So here you write the area of land. So area of land, that means simply rectangular shape का है, so simple you write length into breadth. So 500 multiply 300, 3 5s are 15, and how many 0? 1 2 3 4. So here you put them 40, and meter square, always area मीटर स्क्वायर में या पेरीमीटर आप सेंटीमीटर या मीटर में. ओके, सिंपल ये हमारे पास आ गया. और फिर बोला है कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 10,000. तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है, इज 1,50,000 मीटर स्क्वायर. सो सिंपली यू मल्टीप्लाई 10,000. ओके, क्लियर है? क्लियर है बच्चे सबको? Yes, sir. लेंथ एंड गिवन है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना. 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 10,000 दिया है, आपके पास 1,50,000 है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ठीक है. और इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे जिसमें डबल क्वेश्चन होते हैं. जैसे कि सेकंड दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क एंड हुज द पेरीमीटर 320 मीटर. ठीक है, पेरीमीटर भी दे दिया एंड एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है उसको लिखो, गिवन